معاشی میدان میں پاکستان کی بڑی کامیابی، بین الاقوامی ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ ٹرپل سی سے بڑھا کر ٹرپل سی پلس کر دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیر مقدم، ریٹنگ میں بہتری، درست اقتصادی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہے، معاشی اصلاحات پر دن رات کام کر رہے ہیں، ثمرات عوام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے، وزیر اعظم۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار آج ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ محمد اسحاق ڈار پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کی قیادت کی سطح پر روابط اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کی تصدیق کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ماحولیاتی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زرعی شعبے کی مجموعی اقتصادی ترقی کی شرح میں 2.38% اضافہ ہوا ہے۔ زرعی شعبے میں شراکت داروں کے ساتھ تعاون پر کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا پاکستان کی زراعت کی تبدیلی کے عنوان سے سیمینار سے خطاب۔ ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ، گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال میں 17% اضافہ۔ چین، ہانگ کانگ، برطانیہ، امریکہ اور سنگاپور کی جانب سے براہ راست سرمایہ کاری کی گئی۔ پاور سیکٹر نے سب سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ پنجاب میں 450 کلومیٹر طویل 3 نئے روڈ کوریڈورز کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خصوصی اجلاس میں نئے کوریڈور کی منظوری دے دی۔ 210 ارب روپے کی لاگت سے تینوں پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل ہوں گے۔ بڑے شہروں کو منسلک کرنے والے روڈز کو کوریڈور سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی، معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، مریم نواز۔ بیرون ملک موجود سازشی انتشاری ٹولے کا ایک اور اہم کارندہ بے نقاب۔ بیرون ملک موجود چند عناصر پاکستان کے خلاف خود ساختہ اور من گھڑت جھوٹ پھیلانے میں ملوث ہیں۔ یہ عناصر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ملکی اداروں کے خلاف اکسانے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے مجرم ہیں۔ اس گروہ کے اہم رکن اکبر حسین نے 9 مئی واقعات کے دوران عوام کو انتشار اور شرپسندی پر اکساتے ہوئے ملک دشمنی کا عملی مظاہرہ کیا۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری، مزید 39 شہری شہید، 93 زخمی۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ، خان یونس اور العین پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، اسلامی تعاون تنظیم کی اسرائیلی بربریت اور غیر قانونی آبادکاری کی شدید مذمت۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں پر بہیمانہ تشدد معمول بن چکا۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی جیلوں میں 13 افراد شہید ہو چکے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ خاموش نہیں رہ سکتے، غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 92,000 سے بڑھ چکی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کا ہر شخص زخمی یا بیمار، بچوں کو جان بوجھ کر زخمی کیا گیا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دینے والے 45 امریکی ڈاکٹرز اور نرسز پر مشتمل گروپ کا صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کے نام کھلا خط۔ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارش کا سلسلہ جاری، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور سندھ میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیان۔ کوہاٹ کی تحصیل درہ آدم خیل میں بارش کا پانی گھر میں داخل ہونے سے 10 افراد جاں بحق، ایک بچی لاپتہ۔ پرانے بازی خیل میں شدید بارش کے بعد ریلے کا پانی گھر کے تہخانوں میں داخل ہونے سے اموات ہوئی، امدادی ٹیم کی فوری کارروائی، لاشوں کو تہخانوں سے نکال لیا گیا، لاپتہ بچی کی تلاش بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے نظام زندگی شدید متاثر، شاہراہ کاغان پر مہانڈری نالے میں شدید طغیانی، پل بہہ جانے سے ٹریفک معطل، سیاح پھنس کر رہ گئے۔ بلوچستان میں ندی نالوں میں سیلابی ریلے سے ہرنائی کوئٹہ شاہراہ پر ٹریفک معطل، کوئٹہ شاہراہ پر زرد آلو ندی میں سیلابی ریلے سے ٹریفک معطل، سیلابی ریلے سے زرعی زمینوں کو بھی نقصان پہنچا۔
मोदी की पॉलिसी से भारत का नौजवान बेराह रवि का शिकार। अग्निवीर जैसी स्कीमें नौजवानों में मायूसी पैदा करने के साथ साथ उन्हें जराइम की जानिब भी धकेल रही हैं। अग्निवीर स्कीम मुल्की दिफाई निजाम पर सवालिया निशान है। मोदी सरकार मुल्की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुख्तलिफ हलकों में बेचैनी बढ़ने लगी। भारतीय मीडिया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में ख़वातीन पर जुल्म सितम में इजाफा। जेलों में कैद ख़वातीन जिनसी ज़्यादती इज्तिमाई आबरू रेजी का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार कई ज़ेर हिरासत ख़वातीन ने खुदकुशी की, मुतअद्दिद अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी हैं। द गार्डियन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक को गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग का सबसे ज्यादा सामना है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अक़वाम आलम को कसीरुल जहदी मुश्तरका इक़दाम उठाने की अशद जरूरत है। आलमी दिन पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। पाक फौज की कुर्बानियों का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का बार्सिलोना स्पेन में शुहदाए पाकिस्तान को खुसूसी खराज अक़ीदत। मेंबरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों को सराहा। शुरका का बन्नू में पाक फौज के शहीद जवानों के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती। शुहदा हमारा असासा हैं और हम पूरे यूरोप में उनकी कुर्बानियों की दास्तान बयान करेंगे। फाउंडेशन मेंबरान। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। जापान 6 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। फ्रांस की 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। चीन का 5 तलाई, 5 चांदी और 2 कांसी के तमगों के साथ तीसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के 5-5 और अमेरिका के 3 गोल्ड मेडल्स। और पेरिस ओलंपिक्स जिम्नास्टिक्स के मेंस टीम इवेंट में जापान का गोल्ड मेडल। स्विमिंग में खातून की 400 मीटर इनफरादी मेडले में सोने का तमगा कनाडा की समर मैकेंटोश के नाम रहा। मर्दों के 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में रोमानिया के डेविड पोपोविची की पहली पोजीशन। खातून के फेंसिंग इवेंट में मकामी फेंसर मनोन अपेथी ब्रोनेट ने तिलाई तमगा अपने नाम किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं मनाजिर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे में तफसीली खबरों का आगाज़ करते हैं। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। माशी सूरत हाल में बेहतरी की बुनियाद पर पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इक़दाम किए हैं। टैक्स टू GDP शरह में मजीद 3% इजाफे की जरूरत है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग प्लस करने का खैर मकदम करते हुए ये कहा है कि रियासत की खातिर कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशें काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी इस्लाहात पर दिन रात काम कर रहे हैं और इसके समरात अवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। उन्होंने कहा कि फिच और दीगर आलमी मालियाती इदारों की सपोर्ट पाकिस्तान की माशी बेहतरी के हवाले से अहम है। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि IMF के नए प्रोग्राम से माशी बेहतरी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान माशी बेहतरी की तरफ एक और अहम कदम है। पॉलिसी रेट में कमी से अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि फिच ग्रेडिंग ज़ाहिर करती है कि मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें बरामदात को बढ़ाना होगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अंसार।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की रिपोर्ट से आलमी अदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से तंदही से हम काम कर रहे हैं। पिछला जो फिस्कल ईयर है उसको वी एंडेड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट, बोथ द फिस्कल साइड एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट साइड वेरी मच इन चेक। उसकी वजह से करेंसी स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सनतकारों को दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए पॉलिसी रेट में कमी की गई है। पॉलिसी रेट अब 19.5% पे आ गया है। जैसे इन्फ्लेशन बतदरीज कम होगी तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर हम ये पॉलिसी रेट भी और नीचे आते देखेंगे। उनका कहना था कि बरामदात बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। राहील अंसा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और SIFC की कोशिशों से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। माली साल 2024 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जबकि रवा माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 17% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024 में गैर मुल्की सरमायाकारी 1.90 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल 1.62 बिलियन डॉलर थी। जून 2024 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 169 मिलियन डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 122 मिलियन डॉलर थी। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकार और तिजारती शराकतदार दोस्त रहा है, जिसकी सरमायाकारी गुज़श्ता माली साल में 568 मिलियन डॉलर रही। हांगकांग दूसरा सबसे बड़ा सरमायाकारी करने वाला मुल्क रहा है, जिसने 359 मिलियन डॉलर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की, जो गुज़श्ता साल 250 मिलियन डॉलर तक महदूद रही। दीगर अहम ममालिक में बरतानिया से 268 मिलियन डॉलर, अमरीका से 137 मिलियन डॉलर और सिंगापुर से 100 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी शामिल है। तेल और गैस की तलाश में गैर मुल्की सरमायाकारी 304 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल 137 मिलियन डॉलर थी। ईरान के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी आज तेहरान में हो रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक की क़यादत की सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म की तस्दीक करता है। तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती असरात को कम किया जा सकता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ज़राअत की तब्दीली के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे को जदीद तकाज़ों पर तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता साल ज़राई शोबे ने 6.25% तरक्की की, जिससे मजमूई इक़्तिसादी तरक्की की शरह में 2.38% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ICT, IoT, मोबाइल एप्लीकेशंस, GPS, GIS और UAV रवायती काश्तकारी के तरीक़ों को तब्दील करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सेहत के उमूर से मुतालिक वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए वफाक और सूबों ने 68 अरब की खतीर रकम से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए हेपेटाइटिस C का खात्मे पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करेंगी। डायरेक्टर आलमी इदारे सेहत की क़यादत में आला सतह वफ़द से मुलाकात के दौरान डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था कि वज़ारत सेहत ने हेपेटाइटिस के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई है। मुल्क भर में 160 मिलियन आबादी की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाएंगे। मुस्बत आने वाले मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। डायरेक्टर आलमी इदारे सेहत ने हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद साजिशी और इंतशारी टोले का एक और अहम कारिंदा अकबर हुसैन नामी भगोड़ा
बेनकाब हो गया, जिसने 9 मई वाकयात में शरपसंदी पर उकसाते हुए मुल्क दुश्मनी का अमली मुजाहरा किया। अकबर हुसैन बैरून मुल्क बैठकर मुसलसल पाक फौज के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करता नजर आता है। हालांकि माजी में वो खुद भी इसी फौज का हिस्सा रह चुका है। रिटायरमेंट के बाद मुल्क दुश्मन अनासिर की ईमा पर अकबर हुसैन अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा हो गया और फौज का नाम इस्तेमाल करते हुए फॉरेन फंडिंग भी हासिल करता रहा। इसकी जानिब से एक्स अकाउंट पर खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और सिविल वॉर की झूठी खबरें शेयर की जाती रहीं, जबकि बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम भी फौज पर लगा दिया जाता है। ये भगौड़े शरपसंद मुल्क दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडों को भी शेयर करते दिखाई देते हैं। इस शख्स पर गद्दारी और फॉरेन फंडिंग पर काम करने के इल्ज़ामात बेशुमार शवाहिद और सबूतों से साबित हो चुके हैं। अवाम और फौज को बगावत पर उकसाने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा सुनाई जानी चाहिए। अकबर हुसैन को बगावत, दहशतगर्दी, तशद्दुद पर उकसाने की पादाश में मफरूर करार दिया जाना चाहिए। इसकी मुल्क दुश्मनी पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बैरून मुल्क मौजूद चंद अनासिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए झूठ फैलाने में मुलव्वस रहते हैं। ये किरदार खुद साख्ता और मनगढ़ंत झूठ फैलाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन इदारों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। गवादर में नाम निहाद बलोच तहरीक राजीमुची के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर थे कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने हमला करके सिपाही शबीर बलोच को शहीद जबकि एक अफसर समेत 16 जवानों को जख्मी कर दिया। शहीद सिपाही शबीर बलोच की उम्र 30 साल थी और वो जिला सिब्बी के रहायशी थे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक एक तरफ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मजमूम प्रोपेगेंडा करके पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हक में फिजा हमवार करने की नाकाम कोशिश भी की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के गैर कानूनी इक़दामात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म के मज़मूम प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, पुरअमन और पुरसकून रहें। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें ताकि अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के ताउन से बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को तबाह करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। और बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शबीर बलोच की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। सिपाही शबीर बलोच को 29 जुलाई को नाम निहाद बलोच राजीमोची के आड़ में एक पुरतशद्दुद हजूम ने गवादर ज़िला में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर हमले में शहीद किया था। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल लहलांगू, पाक फ़ौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जसद खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहाँ उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मसाइल का हल तलाश करने की गरज से बातचीत के लिए तैयार हैं, ताहम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे मलिक उमर फारूक की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबा जब भी तरक्की की राह पर गामजन होने लगता है तो एहतजाज और धरने शुरू हो जाते हैं। किसी जत्थे को बदअमनी फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। ये सिलेक्शन ऑफ गवादर क्यों? सबसे ज्यादा लोग तो क्वेटा में मौजूद है, बलूचिस्तान का सेंट्रल पॉइंट खुजदार बनता है। ये एक टेल में जाके क्यों जलसा सोचा गया? बिकॉज अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है CPEC का, वो शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के इलाक़ से मुतल्लिक मुआहदे आईन पाकिस्तान की तश्कील के बाद खत्म हो चुके हैं। जिस मुआहदे की बात की जा रही है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, किसी किस्म का पुराना मुआहदा जो है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद खान अहमद यार खान, जो उस वक्त खान ऑफ कलात थे, वो फेडरेशन के नुमाइंदे यहाँ पर बने। यहाँ पर आके उन्होंने गवर्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सब कुछ एक रात में ठीक नहीं हो सकता। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दक़ा खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका ऑपरेशन में खारजी कारी ऑफ फितना अल खारजी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में सवाबिक रहायशी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में एक और कार्रवाई में दहशतगर्द खारजी सिफ्तुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर ऑफ फितना अल खारजी मारा गया, जबकि 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में की गई कार्रवाई में एक और खारजी दहशतगर्द वासिल जहन्नुम कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के हवाले से दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना हैं। जवानों की शहादतें हमारे इस अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद, डेरा इस्माइल खान और शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके दराजात के लिए दुआ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। सूबे में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लैस किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला ने जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से करेंगे। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर्स की मंजूरी दे दी है। तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे, जिन पर 210 अरब रुपए लागत आएगी। इस हवाले से इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रोड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट न सिर्फ सफरी मुश्किलात को कम करेगा बल्कि माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। तीनों कॉरिडोर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से मुकम्मल किए जाएंगे। नए रोड कॉरिडोर्स पर प्रोजेक्ट के तहत साहिवाल से चीचावतनी, रोजाना और रोजाना से लैया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। नेपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में तब्दील किया जाएगा, जबकि श्योरकोट झंग चिराग वाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर बोर्ड में मैट्रिक में गवर्नर हाउस के गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल के नुमायां पोजीशन लेने वाले तलबा ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने पोजीशन लेने वाले तलबा को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सरदार सलीम हैदर ने तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए मेहनत जारी रखें। उन्होंने गवर्नर हाउस स्कूल के असातिज़ा की तालीमी कारकर्दगी को सराहा और मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने PTI वकला की इस्तदा पर जमानत की दरखास्तों पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI के खिलाफ थाना तरनौल में 2 और 1 मुकदमा थाना रमना, सेक्रेटरीट कोसार और थाना कराची में भी दर्ज हैं। बानी PTI के खिलाफ 3 मुकदमात 9 मई वाक़यात के तनाजुर में दर्ज हैं। बानी PTI के खिलाफ 1 मुकदमा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के तनाजुर में दर्ज है। बानी PTI के खिलाफ 1 मुकदमा इदारों के खिलाफ तकरीर और 1 मुकदमा तोशा खाना जाली रसीदों पर दर्ज है। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना जाली रसीदें जमा कराने पर थाना कोसार में फौजदारी मुकदमा दर्ज है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 39 अफराद शहीद और 93 ज़ख्मी हो गए। रफ़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि खान यूनिस पर भी सेहूनी बमबारी में 5 शहरी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। सेहूनी बमबारी में बहुत से लोगों के मलबे तले दबे होने के बायस शहादतों में इजाफे का खदशा है। इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज़ करते हुए अलबुरेज, नसीरात और अलैन कैंपों में घरों समेत दीर अल बलाह के जुनूब में ज़राई इराज़ी को निशाना बनाया।
7 अक्टूबर से जारी इसराइली मसालिम में फ़लस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 39,363 तक पहुँच गई, जबकि 90,932 ज़ख्मी हुए हैं। गजा में ग़िज़ाई किल्लत के बायस 6 साला बच्चा शहीद हो गया, जिससे ग़िज़ाई किल्लत के बायस शुहदा की तादाद 39 हो गई। आलमी इदारों के मुताबिक गजा में 7 लाख से ज़ायद अफराद को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। आलमी इदारे सेहत ने गजा में पोलियो वबा की रोकथाम के लिए फ़ौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो की वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए फ़ौरी आलमी मदाखलत की ज़रूरत है। उधर इस्लामी ताउन तंजीम ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत और गैर कानूनी आबादकारी के जारी मंसूबों की मज़म्मत की है। OIC ने जारी एक बयान में कहा है कि तंजीम ने इसराइली आबादकारी और सकाफती मकामात को नुकसान, बैनुल-अक़वामी कानून, जिनेवा कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा की मुत्तलिका करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। OIC ने आलमी बिरादरी बिलखुसूस यूनेस्को से मुतालबा किया है कि मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़े में सकाफती इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों पर बेईमाना तशद्दुद मामूल बन चुका है। अखबार ने हाल ही में इसराइली जेल में तशद्दुद से शहीद होने वाले एक फ़लस्तीनी नौजवान का जिक्र करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जेलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खामोश नहीं रह सकते, गजा में हलाकतों की तादाद 92,000 से ज़्यादा है। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टरों और नर्सों पर मुश्तमिल ग्रुप का अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस के नाम खुले ख़त में ये इंकशाफ किया है कि इसराइली हमलों से गजा का हर शख्स ज़ख्मी या बीमार है और बच्चों को जानबूझकर ज़ख्मी किया गया। अमरीकी डॉक्टर ने मुतालबा किया कि गजा में फ़ौरी जंगबंदी की जाए। हुकूमत अमरीकी और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ऐसा करने की पाबंद है। अमरीकी डॉक्टरों ने मज़ीद मुतालबा किया कि इसराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए और फ़ौजी, इक़्तिसादी और सिफारती मदद रोकी जाए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया, खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। नाज़रीन, कोहाट की तहसील दरादम खेल में घर में सैलाबी रेला दाखिल होने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दरादम खेल के इलाके बाज़ेद खेल में घर के तहखाने में बारिश का पानी दाखिल होने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने वाक़या में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस करते हुए लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। मानसेरा में शाहराह कागान पर महांडरी नाला में शदीद तुग़यानी के बाद शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रेले में बह गया, जिसकी वजह से कागान के लिए ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और बड़ी तादाद में सयाह महसूर हो गए। बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में नदी नालों में सैलाबी रेले से हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। हरनाई और गिरदोनवाह में रात गए मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा।
बारिश से कोयटा शारा जरदालू नदी में सैलाबी रेला आने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो गई है। नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले ने नदी के करीब ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचाया है। मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह जुड़वां शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बारिश से रावलपिंडी के कुछ इलाके ज़ेर आब भी आए हैं। वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान बारिश के बायस जुड़वा शहरों का मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब भी आए। रावलपिंडी में चकलाला, शमसाबाद और कटारिया के मकाम पर बिल तरतीब 81, 68 और 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस्लामाबाद में सैदपुर में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहेगा। जो हमारे नदी नाले हैं, जो पंजाब के नॉर्थ ईस्ट के नदी नाले हैं, यहाँ पर जो है ना वो पानी का बहाव जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो नाला लई रावलपिंडी का नाला लई में, इसमें पानी का इजाफा हो सकता है। और अभी भी हमने रिकॉर्ड किया है कि जो कटारियाँ है यहाँ पर जो है ना वो प्री अलर्ट हमने जारी कर दिया है। और इसके अलावा ये सिलसिला जो है ना अगले 24 से 48 घंटे में कम हो जाएगा। इसके बाद एक नया स्पेल जो है ना वो अगस्त के पहले हफ्ते में जो है ना वो दाखिल होगा। बारिश के बाद जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार हो गया, जिससे शहरी खुश हैं और मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जुड़वा शहरों में कल से बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। इसकी वजह से हब्स और गर्मी का जो जोर था वो टूट गया है। रावलपिंडी जैसी जो जगह है उनके कुछ इलाकों में पानी आ चुका है घरों में, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो है वो मौसम जो है वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आज से अगर हम 3-4 दिन पहले देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इतना ज़्यादा खुशगवार मौसम हो रहा है कि मेरा दिल करे कि मैं भी बाहर जाऊँ, ऑफिस छोड़ के बाहर अपने दोस्तों को कॉल करूँ और हाइकिंग पे जाएँ। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहेगा, लेकिन बारिश की शिद्दत में कमी होगी। पंजाब के कुछ इलाकों के नदी नालों में तुगानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर में इस मौसम बरसात की पहली अच्छी बारिश से गर्मी के सताए चेहरे खुशी से खिल उठे। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद, जहां हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, बताइएगा कैसा मौसम है इस वक्त कश्मीर का? जी, आज़ाद कश्मीर में इस बार मौसम बरसात के दौरान बारिशें मामूल से कदरे कम हुई हैं और यहाँ तक कि पंजाब में भी बारिशें होती रहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में गो के बारिशें हुई हैं, लेकिन उनका दौरानिया जो है वो इंतहाई मुख्तसर रहा है और इसी वजह से ना तो ये मौसम की शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में कमी ला सकी और ना ही ज़री एतबार से जो है इनका कोई फ़ायदा हो सका है अवाम नास को। लेकिन आज जो बारिश हुई है ये अच्छी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया है और पिछले 1 माह से शदीद गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और साथ साथ बारिश के साथ साथ जो है वो हवाओं का सिलसिला भी चल रहा है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ताहम दूसरी जानब बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है और लैंडस्लाइडिंग के इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मुसाफिरों के लिए ये इत्तला है कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद से मिलाने वाले दोनों जो रास्ते हैं, दोनों शहरात यानी कि मुजफ्फराबाद को हाला और मुजफ्फराबाद एबटाबाद शहरात जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी हैं और ज़िला इंतज़ामिया और STMA की जानिब से शहरियों को बार बार खबरदार किया जा रहा है, मुत्तला किया जा रहा है कि वो पहाड़ी इलाकों में ऐसे मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी, बहुत शुक्रिया अदील अहमद खान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबा पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने के इम्कानात हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में कुछ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद सूरज निकल आया और हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने से शहर में शदीद हब्स की कैफियत बरकरार हैं। शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 जबकि कम से कम 28 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के हैं और बारिशों का ये सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के पेश नज़र मुतालिका महकमे अलर्ट हैं और कंट्रोल रूम से मौसम की बदलती सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर है।
چین نے سمندری طوفان گیمی سے متاثرہ 5 صوبوں کی بحالی کے لیے $7 کروڑ مختص کیے ہیں۔ چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے مطابق ہونان، ہینان، سچوان، شانسی اور فوجیان صوبے طوفان کے باعث شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں بنیادی ڈھانچے، اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر عوامی سہولیات کی بحالی کے لیے $7 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ سمندری طوفان سے فوجیان صوبے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ امدادی کارکنان جنوبی اور شمال مشرقی صوبوں میں کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا کے شہر کیلگری میں ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا۔ پرامن ماحول میں ووٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ ریفرنڈم میں شہداء کے خاندانوں کے افراد نے ووٹ ڈال کر ووٹنگ کا آغاز کیا۔ ووٹنگ کے آغاز سے قبل دعائیہ تقریب بھی منعقد ہوئی۔ کینیڈا میں تقریباً 10 لاکھ اور کیلگری میں 1 لاکھ سے زائد سکھ آباد ہیں۔ ریفرنڈم رکوانے کے لیے بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ دعائیہ تقریب کے بعد مذہبی اور خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ووٹنگ سینٹر کی فضا خالصتان لے کر رہیں گے اور دہلی بنے گا خالصتان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ووٹنگ کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی ووٹ ڈالنے کے لیے طویل قطاریں لگ گئی تھیں۔ ووٹ ڈالنے والی سکھ کمیونٹی نے کہا کہ نریندر مودی مسلمانوں، سکھوں اور اقلیتوں کا دشمن ہے۔ بھارت سے جنگ نہیں بلکہ جمہوری عمل کے ذریعے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ کینیڈا حکومت نے بھارتی مطالبے کے باوجود ریفرنڈم کی اجازت دے کر حق کا ساتھ دیا ہے۔ اگنی ویر اسکیم کے بدترین نتائج سامنے آنے لگے۔ اکھنڈ بھارت کے پرچاری انتہا پسند مودی کی پالیسیز سے بھارت کا نوجوان نہ صرف متنفر بلکہ بے راہ روی کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ 14 جون 2022 کو مودی کے دور حکومت میں ریکروٹمنٹ اسکیم اگنی ویر متعارف کرائی گئی، جس کے تحت 17 سے 21 سال کے بھارتی نوجوانوں کو 4 سال کے لیے بھارتی فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل اس اسکیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی ریاست ہریانہ کے شہری کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان 4 سال فوج میں نوکری کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ وہ ہتھیار چلانا سیکھ لیں گے اور پھر وہ عسکریت پسندی کریں گے۔ صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں ہی مودی سرکار کی اگنی ویر اسکیم کے خطرناک نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے اور حال ہی میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس کے مطابق ایک اگنی ویر چھٹی پر گھر آنے کے بعد جرائم کی دنیا سے جڑ گیا۔ اس حوالے سے موہالی پولیس کا کہنا ہے کہ مجرم کی شناخت اشمیت سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک اگنی ویر ہے۔ موہالی پولیس کے مطابق اشمیت سنگھ نے ناجائز اسلحہ استعمال کرتے ہوئے متعدد موٹر سائیکلیں چوری کی۔ اگنی ویر جیسی اسکیم نہ صرف نوجوانوں میں مایوسی پیدا کر رہی ہیں بلکہ ان کو جرائم کی طرف بھی دھکیل رہی ہیں۔ مودی کے سیاسی حریف ارجن ملک کھارگے نے کہا کہ اگنی ویر جیسی اسکیم مودی سرکار صرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی مقتدر حلقوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ مودی سرکار کی اتحادی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ اگنی ویر جیسی اسکیموں کو جلد از جلد بند کر دینا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے پونچھ اور ریاستی اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیا۔
भारतीय फौजी घरों में घुसकर घरेलू सामान की तोड़ फोड़ और मकीनों को हिरासत कर रहे हैं। जिला सांबा में 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर हमीद फयाज को पैरोल पर मुख्तसर अरसे की रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मोदी हुकूमत जमात इस्लामी को हक के खुद इरादियत से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज़ादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय हुकूमत की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। हुर्रियत तर्जुमा ने कहा है कि कश्मीरी 5 अगस्त 2019 को बीजेपी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत की गई गैर कानूनी तब्दीलियों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा इलाके में भारत के जालिमाना इक़दामात का नोटिस ले। दूसरी जानिब लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती कारकुन सोमन वांगचुक ने अवामी मुतालबात की हिमायत में 15 अगस्त से 28 रोज़ा भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वांगचुक इससे कबल भी मार्च में 21 रोज़ा भूख हड़ताल कर चुके हैं। भारत के बाद अब खबर आपको देंगे अफगानिस्तान से, जहां तालिबान के ज़ेरे काबिज़ ख़वातीन पर जुल्म और जबर की एक और दास्तान। तालिबान ने ख़वातीन को तालीमी सरगर्मियों के अलावा बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर दिया है। अफगान तालिबान की जेलों में कैद ख़वातीन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनमें अब तक किसी भी इल्ज़ाम को साबित नहीं किया जा सका। जेलों में कैद ख़वातीन के साथ होने वाले मज़ालिम की वजह से अक्सर दौरान कैद ही जान की बाजी हार जाती हैं और तालिबान इसकी तहकीक तक नहीं करते। हाल ही में जेल से रिहाई पाने वाली नौजवान लड़की ताहिरा की हलाकत हुई, मगर मौत की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। ताहिरा की हलाकत तालिबान के ज़ेरे हिरासत बदतरीन तशद्दुद के बाद हुई है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा ताहिरा की गिरफ्तारी के बाद खुदकुशी के दावे महज मनगढ़ंत हैं। 19 साला ताहिरा को तालिबान ने 13 जुलाई को गिरफ्तार किया, मगर तालिबान ने अब तक उनकी गिरफ्तारी की कोई वजह पेश नहीं की। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तालिबान की जेलों में कैद ख़वातीन के साथ नारवा और बेईमाना सलूक के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में एक चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस जुर्म में मुलव्विस अफराद का आसान हदफ बेरोजगार अफराद हैं। इंसानों की स्मगलिंग पाकिस्तान समेत दुनिया भर का मसला है, जो बैनुल-अक़वामी मईशत में अरबों डॉलर के कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये घिनौना कारोबार जराइम की दुनिया में तीसरा बड़ा और तेज़ी से फैलता हुआ कारोबार है। आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग को बाकायदा जुर्म करार दिया गया है। इंसानी स्मगलर्स लोगों की जान की परवाह किए बगैर उन्हें पुरखतर ज़मीनी और समंदरी रास्तों से बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का है कहना कि बेरोज़गारी, गुर्बत और गैर मसावी दौलत की तकसीम से इंसानी स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अक़वाम आलम को कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग का सबसे ज़्यादा सामना है। इंसानी स्मगलर्स लालच में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़म गैंग सरगर्म हैं। FIA इन गैंग्स की सरकूबी के लिए हम वक्त चौकस है और मुतअद्दिद मुल्ज़मान को कानून की गिरफ्त में भी लाया जा चुका है। हम सबको मिलकर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही पैदा करने और वजूहात के तदारुक के लिए इक़दामात करना होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। गुज़श्ता हफ्ते ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के मेंबरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फाउंडेशन के मेंबरान और शुरका ने बन्नू में शहीद पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती किया। शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे शोहदा ने दहशतगर्दी के खिलाफ में जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को महफूज बनाया। हम अपने शोहदा को होमलैंड हीरोज़ का दर्जा देते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का तालीम के शोबे में ताउन। वफाकी तालीमी बोर्ड से मुंसलिक रेंजर्स पब्लिक स्कूल्स की तादाद 22 जबकि कॉलेजेस की तादाद 2 है। रेंजर्स पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस 1987 से ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम दूर दराज के पसमानदा इलाकों में मयारी तालीम फराहम कर रहे हैं।
वफाकी तालीमी बोर्ड से रेंजर्स बॉर्डर स्कूल्स में सरहदी इलाकों के इन मुस्तहक बच्चों को तालीम की रोशनी से मुनव्वर किया जाता है जो ज़राए आमद-ओ-रफ्त के फुक़दान के बायस स्कूल नहीं जा पाते। रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन सन 2000 से क़ुव्वत बसारत व समाअत और सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत से रूशनास करा रहा है। रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1981 से हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए कोशां है। रेंजर्स कैडेट कॉलेज 1 फरवरी 2022 से माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी चक्री में कैडेट्स की तैयारियों का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से मंजूर शुदा इदारा है जो 2017 से पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम शोबा तिब में इल्म की राहें रोशन कर रहा है। हेपेटाइटिस सी एक ऐसा मोहलक वायरस है जो जिगर को मुतासिर करता है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी को मुतासर करने वाले इस वायरस की रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम बराए खात्मा हेपेटाइटिस सी शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में। आलमी सतह पर 6 करोड़ हेपेटाइटिस सी के मरीजों में से 1 करोड़ मुतासरा केसेस पाकिस्तान में हैं। इस बीमारी की रोकथाम, तशखीस और इलाज के लिए फौरी इक़दामात करते हुए हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम बराए खात्मा हेपेटाइटिस सी का आगाज किया है। इस प्रोग्राम का मकसद काले यरकान जैसे मूजी मर्ज के बारे में आगाही फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मोहलिक वायरस के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमतों से मिलकर इस मर्ज पर काबू पा लेंगे और उम्मीद है कि ठोस हिकमत अमली से पाकिस्तान जल्द हेपेटाइटिस फ्री मुल्क बन जाएगा। जो शख्स हेपेटाइटिस में गिर जाता है उसकी न सिर्फ प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, इलाज की कीमत आती है, वो भी उसको मज़ीद गुर्बत की तरफ धकेल देती है। चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को दुनिया के सामने एक कामयाबी की मिसाल बनाएं, हम उन तमाम चीज़ों पर भी काबू पाएं कि जो इसके पैदा होने का बायस बन। प्रोफेसर सईद अख्तर ने कहा कि खून की महफूज मुंतकिली, हर मरतबा नई सिरिंज और स्टेरलाइज औजारों के इस्तेमाल से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कहा कि काले यरकान के बारे में लोगों को आगाही फ्राहम करना वक्त का तकाजा और हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर शोबा सेहत में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स तकसीम की गईं। शुरका ने तवक्को जाहिर की मुल्क गिर मुहिम हेपेटाइटिस सी की जल्द तशखीस, रोकथाम और मुल्क से इसके खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।